हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पैराजीन्स। पैराजीन्स इज 1,4 डाइजीन. It does not occur naturally in appreciable amounts. However, several polycyclic derivatives of it occur in nature. For example, pyridine and phenazine. Among hydropyrazines, the most important is hexahydropyrazine or piperazine. So their derivatives are useful as antibiotics, diuretics, and anti-tumor agents. The pyrazine molecule is symmetrical. You can see the if you pass the plane through the position 4 and 1, the molecule is symmetrical. So this is a symmetrical molecule. That's why it has zero dipole moment. It is a colorless solid having melting point of 54 degrees Celsius. It is very weak base in comparison to pyridine, pyridine and pyrimidines. You can see here the pK value of pyridine is more than pyridine, which in turn is more than pyrimidine. Here the value is 0.65. तो पैराजीन जो है वो वीकली बेसिक है among all the digenes. The reason behind this is not very much clear. The resonance energy of pyrazine is 24.3 kilocalorie per mole. Now, these are the resonating structures of pyrazines. Synthesis. Pyrazines can be prepared from 1,2-diketones. So here the 1,2-diketone react with 1,2-diamines. This is a condensation reaction in which two molecules add with the elimination of a small molecule of water. Now this is the form. This form an intermediate, that is 2,3-dihydropyrazine, which on dehydrogenation give 5,6 alkyl pyrazine. Here this is the synthesis of pyrazine. Second, from alpha amino carbonyl compounds. तो here the alpha amino carbonyl compound जो है उनकी रिएक्शन कराई है हमने. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट अल्फा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं दैट इज दिस वन. So these two molecules undergo self-condensation in the presence of base, where the two molecules of water, one is here and from other is here. The cyclic product is formed, which on oxidation form the pyrazine derivative. सब्स्टिट्यूटेड pyrazine derivative का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो आपने देखा होगा दोनों रिएक्शंस में क्या हुआ. जो फर्स्ट स्टेप था दैट इज कंडेंसेशन, यानी दो मॉलिक्यूल ऐड हुए, इसमें अलग अलग हुए और इसमें सेम मॉलिक्यूल, तो ये सेल्फ कंडेंसेशन बोला गया इसको. इसमें दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल था तो कंडेंसेशन बोला. और क्या हुआ, स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एलिमिनेट हुआ, क्या बना, इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ. और उस इंटरमीडिएट का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ. पैटर्न आपको समझना है. ऑक्सीडेशन से क्या होगा, जो रिंग है वो फुली एरोमेटाइज हो जा रही है. तो इस तरीके से जो पिपरेजीन है, ठीक है ना, पैराजीन है, उसका फॉर्मेशन हुआ. नेक्स्ट, हियर आल्सो 2 अल्फा अमीनो एसिड्स. तो यह दो मॉलिक्यूल्स आपने लिखे, ठीक है. तो ये अंडरगो, ठीक है ना, ये कंडेंसेशन शो किया, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ. दिस क्या बना, 2,5-डाई ऑक्सो, ठीक है ना, पिपरेजीन्स, ठीक है ना, विच ऑन एल्काइलेशन क्या करा, तो जो करस्पॉन्डिंग जो CO ग्रुप थे दे विल बी कन्वर्टेड टू इथॉक्सी ग्रुप. तो डाई इथॉक्सी डाई लायरोपायराजीन का फॉर्मेशन हुआ. और विच ऑन ऑक्सीडेशन बाय DDQ क्या बनाते हैं, pyrazine, substituted pyrazine. So these are the synthesis of pyrazines. Pyrazines
means 1,4-diazine in which nitrogen atoms are present in 1 and 4 positions. Now chemical reaction. तो the first one is reactions with acids. ठीक है, तो चूंकि बेसिसिटी शो करते हैं तो आपको बताया था कि जो ये सब के सब क्या है, वीक बेसिक है, तो बेसिक के लिए क्या होगा, बेस किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से यानी प्रोटॉन से रिएक्ट करेगा। तो इट इज अ मोनो बेसिक कंपाउंड एंड इज प्रोटोनेटेड एट N1। तो हम जानते हैं डाई प्रोटोनेशन होता है इसमें भी इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो डाई प्रोटोनेशन जैसे मैंने बताया था पिपरीजीन में पिरिमिडीन्स में भी होता है, किस में नहीं होता है, पिरिडीजीन यानी 1,2-डाइजीन में नहीं होता, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन एटम क्या होते हैं, एडजेसेंट पोजीशंस में होते हैं। तो इन दैट केस डाइप्रोटोनेशन इज नॉट पॉसिबल। हाउएवर पिरिमिडीन्स और 1,3-डाइजीन एंड पायरेजीन और 1,4-डाइजीन अंडरगो डाइप्रोटोनेशन व्हेन there is a presence of strong acids. Now the next reaction is electrophilic substitution reaction. तो as we know जो electrophilic substitution है, क्योंकि इसमें सेकंड नाइट्रोजन आइटम प्रेजेंट है, इसी कारण रिंग क्या है, डीएक्टिवेट है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कब एक्टिवेट होगी, कि जब कोई ना कोई क्या उसमें मौजूद हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट्स इन द रिंग देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज फेसाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे 2 पोजीशन में 2-मिथाइल पायरेजीन है, 2-मिथाइल पायरेजीन की जब रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, और इन 40 डिग्री सेल्सियस में आपने जब कराई, तो क्या हुआ कि जो 3 पोजीशन थी यहाँ पे कौन आ गया, सीर। तो 3-क्लोरो-2-मिथाइल पायरेजीन का फॉर्मेशन हुआ, और ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होता है, जैसा कि आपने बेंजीन केमिस्ट्री में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होती है दैट इज एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म कहते हैं उसको। ठीक है, द नेक्स्ट रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है इनकी वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेकंड नाइट्रोजन आइटम विच शो -I इफेक्ट देयर इज एन डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग। बेंजीन जो रिंग है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, कम है। इस कारण इसमें जो क्या होता है, जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वो फैसाइल है, वो ईजी है। देखिए, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ चिची-बेबिन रिएक्शंस वेयर यू रिएक्ट विथ सोडामाइड NaNH2। तो पायरेजीन रिएक्ट विथ सोडामाइड फॉर्म 2-अमीनो पायरेजीन। द रिएक्शन इज सिमिलर टू पायरेडीन। जो पायरेडीन है वो भी क्या शो करता है, पायरेडीन भी जब आप रिएक्शन करते हैं उसको तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है और क्या बनाता है, एमिनो पायरेडीन। तो ये रिएक्शन सिमिलरिटी शो करती है किससे, पायरेडीन से। और अल्सो ये शो करती है कि इसमें क्या है, एप्रिसिएबल एरोमेटिक कैरेक्टर है। तो इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है, ये बात का भी, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर से मतलब ये है कि जो रिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर डीलोकलाइज, वो डीलोकलाइज है। ठीक है, तो इस कारण क्या हो रहा है कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि जो H ग्रुप है यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, वो H रिमूव हो रहा है, उसकी जगह कौन आ रहा है, NH2 आ रहा है, और इस तरह से 2-अमीनो पायरेजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हेन 2-अमीनो पायरेजीन इज रिएक्ट विद Na2H2SO4। तो ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन आप जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो एमिनो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है डाइजोनियम ग्रुप में N2+, और फिर वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसमें, क्या बन गया इससे, OH ग्रुप में। जैसे आसानी से निकल जाएगा और फिर इसमें OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने इसमें जो रिएक्शन है वो कैसे किया है, इसमें इनडायरेक्टली आपने क्या किया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया है 2 पोजीशंस में, तो OH आ गया, और फाइनली ये टॉटोमरेज में शो करेगा। ठीक है, तो टॉटोमरेज शो करेगा तो OH का H है वो टॉटोमराइज हो जाएगा N पे, तो H ले जाएगा N के पास। ठीक है, तो ये जो डबल है ये सिंगल हो जाएगा, और जो सिंगल OH था वो H ले गया, तो सिंगल O की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पायरेजीनोन का। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है। नेक्स्ट 2-फ्लोरो पायरेजीन की जब रिएक्ट कराते हैं सोडियम एजाइड के साथ,
तो ये क्या बनाता है 2 एजिडो पायरेजीन। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो ये N3 है, ये जो है ये क्या करता है, यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन करता है और आपका क्या कंपाउंड बनता है, टेट्राजोलो 1,5A पायरेजीन। तो ये इस कंपाउंड का फॉर्मेशन आता है, ठीक है ना, 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो जाती है। द नेक्स्ट इज व्हेन द अल्फा और बीटा मिथाइल कार्बन एटम्स आर एसिडिक। तो ये कब होता है, जो वो कह रहा है कि जो ये CH3 ग्रुप है, तो वही जैसे आपने पहले ही पढ़ा था, जो ये CH3 ग्रुप है ये एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है, ठीक है। क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज नाइट्रोजन एटम्स, जो कि कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट, -I इफेक्ट। तो इस -I इफेक्ट के कारण क्या होता है कि जो CH3 है इसका जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, बिकम्स एसिडिक। तो सोडियम NaNH2 के साथ, तो वही देखिए आप, जब पिपरेजीन की जो पायरेजीन की रिएक्शंस NaNH2 से कराई थी डायरेक्टली, तो आपका 2 एमिनो पायरेजीन बना था। और दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ Tichy-Bevin रिएक्शन। व्हेन 2 मिथाइल पायरेजीन रिएक्ट विथ सेम NaNH2, देन क्या हुआ, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट। तो हुआ क्या, जो हाइड्रोजन CH3 का हाइड्रोजन था जो एसिडिक था वो H+ निकल गया बाहर, तो CH2 - H+ और NH2 मिलकर अमोनिया बाहर हो गई, और H+ और NH+ चले गया, तो CH2- और उसके साथ Na+ आ गया। और अब एल्काइनेशन अगर आप करेंगे तो क्या होगा, NaX बाहर हो जाएगा और CH2R हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चेन यहाँ से आगे बढ़ सकती है, आगे को मूव, रिएक्शन जो है यहाँ से आगे को फॉरवर्ड दिशा में मूव कर सकती है। तो ये इफेक्ट है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। तो जो पायरेजीन रिंग सिस्टम्स है इज रीजनेबली स्टेबल टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो कह रहा है कि थोड़ा सा वो स्टेबल है इन कंपेरिजन टू अदर डाइजीन्स। तो जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें जो एरोमेटिक करेक्टर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, एरोमेटिसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड पायरेजीन है, ठीक है। तो इन सब्स्टिट्यूटेड पायरेजीन जैसे आप देख रहे हैं, इसमें 2 क्लोरोपायरेजीन है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, दिस इज 2 क्लोरोपायरेजीन। तो व्हेन इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड या पर एसिड के साथ, तो ये क्या फॉर्म करता है, N ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो N ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, वो इस नाइट्रोजन में ना होके इस नाइट्रोजन में होता है। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज लेस हिंडर्ड और मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन। समझ में आ गया। तो ये लेस हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड मतलब यहाँ पे जो क्राउडिंग है वो कम है, क्योंकि इसके बगल में Cl ग्रुप मौजूद है। तो ये जो नाइट्रोजन आइटम है दैट इज क्राउडेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ Cl ग्रुप। तो इसमें यहाँ पे ऑक्साइड का फॉर्मेशन आसानी से नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, इसकी जो बेसिक एबिलिटी है वो भी कम होगी, क्योंकि Cl यहाँ पे क्या करेगा, -I इम्पैक्ट लगाएगा। उस कारण क्या होगा, जो N की नॉन पेयर की डोनेशन की एबिलिटी है, N नॉन पेयर से तो जोड़ेगा O को एक देगा, एक की शेयरिंग, तो M पे प्लस आएगा, O पे माइनस आएगा। तो ये जो एबिलिटी है नाइट्रोजन की, बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ -I इफेक्ट ऑफ Cl ग्रुप। तो इसलिए क्या होगा कि जो ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा वो 4 पोजीशन में होगा, यानी 4 ऑक्साइड बनता है, इसमें दिखाए। तो वैसे बोलेंगे तो पायरेडीन N ऑक्साइड जनरली बोला, लेकिन इसकी पोजीशन क्या रहेगी, 4 पोजीशन रहेगी। क्लियर हो गया। व्हेन, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन अगर आप देख रहे हैं, जब आपने पायरेजीन की रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन देखिए, इसमें कोई ग्रुप मौजूद नहीं है, तो ट्राईफ्लोरो एसिटिक पर एसिड के साथ आपने रिएक्शन कराई, तो क्या हुआ, दोनों जगह आप देख रहे होंगे पायरेजीन डाई एनऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। जो दोनों एन नाइट्रोजन आइटम थे 1 पोजीशन में और 4 पोजीशन में, दोनों जगह पे क्या हुआ, एनऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये बना। तो इसमें यही देखना है कि कौन सा रिएजेंट ले रहे हैं, कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल ले रहे हैं और क्या प्रोडक्ट बनना है, यही इसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2,5-डाईमिथाइल पायरेजीन, उसकी रिएक्शन कराई है आपने एसिटिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोबोरेट, ठीक है। ये तो क्या हुआ, अगर आप देख रहे हैं मिक्सचर मिला आपको, मिक्सचर ऑफ एन ऑक्साइड। तो एक बार 1 पोजीशन में भी हुआ, फिर 1 और 4 पोजीशंस में हुआ। तो ऐसे केसेस में आपको क्या हुआ, मिक्सचर ऑफ एन ऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट ये है 2 क्लोरो, जैसे से पहले पढ़ा था 2 क्लोरो पायरेजीन है। अब जब एसिटिक पर एसिड के साथ आपने कराया था
तो जो एन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था वो 4 पोजीशन में हुआ था। यहाँ पे जब आपने उसको कैरोज एसिड के साथ कराया, यानी हाइड्रोक्सी पिरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, H2SO5, तो दिस इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन दैट केस जो एन ऑक्साइड का फॉर्मेशन था वो 1 ही पोजीशन में हुआ, आप देखेंगे एन, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल बाद में आएगा। ओवरऑल क्या हुआ, इसमें सबसे पहले प्रोटोनेशन हुआ, तो प्रोटोनेशन यहाँ पे हुआ क्योंकि ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो इसने क्या करा, H+ को जोड़ दिया और ये बन गया NH+। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि, ठीक है, इससे बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से क्या हुआ इसके बाद कि N था, उसने रिएक्ट किया किसके साथ, कैरोज एसिड के साथ। ये कैरोज एसिड है, OHOSO3H यानी H2SO5 ये। तो इसने क्या करा, अपने लोन पेयर से जोड़ा किसको, इसको। यहाँ से क्या बाहर हो गया, HSO4 माइनस बाहर हो गया। तो O पे प्लस आया, N ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक एक की शेयरिंग करी, तो क्या बना देखते हैं ये, ठीक है। तो N पे प्लस आ गया और OH ये बचा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि O का प्लस खत्म हो जाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो N ने OH को जोड़ लिया और N पे प्लस आ गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, अगर आप देख रहे हैं यहाँ से H+ बाहर हो गया, H+ बाहर हो गया तो यहाँ पे O- बन गया, यानी एन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। और वो जो H+ यहाँ से बाहर हुआ, ठीक है, और यहाँ से भी जो हुआ वो H बाहर हो गया एक तरीके से। तो आपका क्या बन गया, 2-क्लोरोपाइरिजीन एन ऑक्साइड। तो ओवरऑल अगर हम देखें क्या हुआ, ओवरऑल देखें जो 2-क्लोरोपाइरिजीन था, इन द प्रेजेंस ऑफ कैरोज एसिड यानी पिरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जो ऑक्साइड एन ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हुआ वो कौन सी पोजीशन में हुआ, 1 पोजीशन में हुआ। ये समझना है आपको, ठीक है। और जब आपने एसिटिक एसिड और पर एसिड लिया था तो उस केस में एन ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 4 पोजीशन में हुआ था। यही चीज़ समझनी है, इफेक्ट ऑफ द रिएजेंट और इफेक्ट ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल। क्या आपने स्टार्टिंग मटेरियल लिया तब क्या प्रोडक्ट बना, और जब रिएजेंट चेंज किया तब क्या प्रोडक्ट बना। नाउ दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हेन द मिथाइल ग्रुप is present in 2 or 4 position, 2 and 4, the same reactant H2O2 and CH3COOH. Now the N oxide formation takes place at 1 position. तो ये भी एक चीज़ है। इसके अलावा क्या कहता है वो कि एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन जो होता है, एंजाइम्स की प्रेजेंस में भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। जैसे अभी तो आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया या कैरोज एसिड लिया, ठीक है, या एसिडिक पर एसिड लिया या कोई पर एसिड लिए, इनके अलावा एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन भी होता है। तो इस केस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है किसका, मिथाइल ग्रुप का। तो मिथाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है किसमें, ये मिथाइल जो ग्रुप होता है, वन ऑफ द मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू COOH ग्रुप। तो वट हम क्या लेते हैं इसके लिए, सुडोमोनास ATCC 33015। तो दिस एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ पैराजाइलिन एंड 30 डिग्री सेल्सियस क्या करता है, ये जो CH3 ग्रुप है, जो 2,4 डाइमिथाइल पायरेजीन में जो 1 CH3 ग्रुप है, इट विल कन्वर्टेड टू COOH। Now on the product is formed 5-methyl pyrazine 2-carboxylic acid which have a percentage of 90%, ठीक है। तो हम ये क्यों यूज करते हैं, दिस विल बी यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोएरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हेट्रोएरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीडेशन करते हैं मिथाइल ग्रुप का इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और दिस इज कॉल्ड एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको दिख रहा होगा ये एंजाइम, ये जनरली एक नॉलेज के लिए आपको बताया गया है कि जो पहला कंपाउंड है दैट इज 2,3,6 ट्राईमिथाइल पायरेजीन, सेकंड है 2,5 डाईमिथाइल पायरोल, तीसरा है 2,5 डाईमिथाइल, ये दोनों तो सेम ही है, अच्छा सॉरी हाँ फुरान, ये फुरान है वो पायरोल है, और जो चौथा है वो है 4-मिथाइल थायोजोल। तो ये सब के सब एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन इनमें होता है। और क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग CH3 ग्रुप है इट विल बी कन्वर्टेड टू COOH वेयर देयर आर प्रेजेंस ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप, इन दैट केस 1 मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू COOH ग्रुप। ये बन गया,
तो ये सारे रिएक्शन एक बता रखा आपको कि ये एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन है मिथाइल ग्रुप का, किसमें, कार्बोक्सिल ग्रुप में। नेक्स्ट फोटोकेमिकल रिएक्शंस, तो जो ठीक है, तो आइसोमेराइजेशन टू अदर डाइजीन्स, इन दैट केस क्या होता है कि जो 1,3 डाइजीन है, जब जब आप उसको क्या करते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी उसको इंटरेक्ट कराते हैं यूवी लाइट से, तो उस केस में क्या होता है, वो आइसोमराइज हो जाता है दूसरी डाइजीन्स में। जैसे ये 1,4 डाइजीन है तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, 1,3 में, यहाँ पे देखिए, तो ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जो 2,6 डाइमिथाइल पायरेजीन था, ठीक है, ऑन इंटरेक्शन विथ लाइट इट विल आइसोमराइज टू 2,5 डाइमिथाइल पिरिमिडीन, यानी जो 1,4 सिस्टम था, यानी जो पायरेजीन सिस्टम बोलते हैं इसको, वो 1,3 में कन्वर्ट हो गया। 1,3 मतलब पिरिमिडीन सिस्टम। ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ सेम। ठीक है, ये तो दिस इज द फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ पायरेजीन्स। द नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ 2,3 पायराजाइन, आप देखिएगा, तो दिस इज अ कॉन्ट्रेरी टू पिरिडीन। जो पिरिडीन है उससे कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन ये शो कर रहा है, कौन, पायरेजीन। तो ये पायरेजीन आप देख रहे हैं, इस पायरेजीन का नाम क्या है, पायरेजीन 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, मतलब जो 2 COOH ग्रुप है उनसे वाटर का एलिमिनेशन हुआ है और उसका कोरस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड फॉर्मेशन हुआ है। इस केस में क्या होता है, इन द 30 डिग्री सेल्सियस इन सिलिका ट्यूब क्या हो रहा है, CO2 निकली और CO, यानी ये पूरा पार्ट बाहर हो गया। ये तो क्या हो गया, दोनों यहाँ से भी ऊपर से भी बॉन्ड कम हुआ, यहाँ से भी बॉन्ड कम हुआ और यहाँ से भी बॉन्ड कम हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया, ये तो ये बेंजाइन टाइप का सिस्टम बन गया। तो यहाँ पे आइन वर्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पायराजाइन। ठीक है, तो ये पायराजाइन इंटरमीडिएट है। और इसके बाद क्या हुआ, ये फिर ओपन हुआ होगा, तो इसने बनाया मेलियोनाइट्राइल एंड फ्यूमेरोनाइट्राइल, एक स्टेज फॉर्म में बनाया, एक ट्रांसफॉर्म में बनाया। ये रिंग ओपन हुई तो ये 2 प्रोडक्ट आपको का फॉर्मेशन हुआ। तो ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ 2,3 पायराजाइन। नेक्स्ट, सिमिलर टू पायरिडीन एनऑक्साइड, तो जैसे पायरिडीन एनऑक्साइड ये सिमिलरिटी शो कर रहा है, ये कॉन्ट्ररी, ये मतलब इससे डिफरेंट रिएक्शन शो कर रहा है पिरिडीन से। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, हमने जब भी आपने कंपेयर जो किया है पिरिडीन से करते हैं इसका, पिरिडीन में नाइट्रोजन आइटम एक होता है और जो डाइजीन्स होते हैं 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4, यानी पिरिडीजीन, पिरिमिडीन एंड पायरेजीन्स। तो इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन आइटम होता है, दूसरा नाइट्रोजन आइटम वो 1, 2 पोजीशन में होता है, फिर 1, 3 में एंड और पायराजीन में 1, 4। तो ये सिमिलरिटी है, जब उसको एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ आप रिएक्ट करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं और 10% NaOH के साथ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं 3-methyl-6 पायरेजीनोन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना, ये बना है। ऐसे ही यहाँ पर भी एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई तो ये कोरस्पॉन्डिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये सारी जो हमने पढ़ी अभी तक, ये सारी रिएक्शन जो हैं किसकी हैं, पायरेजीन्स की हैं। तो ये हमारा 1,4 डाइजीन्स, यानी जो डाइजीन्स हैं वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। डाइजीन्स में मैंने सबसे पहले 2 वीडियो जो थे वो पिरिडीजीन के बनाए थे, वो अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद 1,3 डाइजीन्स में पिरिमिडीन, ठीक है, वो हमने उसके 2 वीडियोज़ हैं वो भी अपलोड हो चुके होंगे। और जो डाइजीन्स का तीसरा क्लास जो उसका क्लासिफिकेशन था, जिसमें 1,4 डाइजीन, जिसमें हमने आज पढ़ा पायरेजीन्स, तो इसका भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा अभी फर्दर आने वाले टाइम में। तो आज हमने जो पढ़ा पायरेजीन्स पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़े, सिंथेसिस पढ़ी, केमिकल रिएक्शंस पढ़ी। केमिकल रिएक्शंस में रिएक्शन विद एसिड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन विद न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ 2,3 पायराजाइन, और क्या उसकी सिमिलरिटी थी और क्या उसकी कॉन्ट्रास्ट बिहेवियर था विद रेस्पेक्ट टू पिरिडीन। तो ये हमने आज सारे डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच।